Hi everyone, welcome back to the channel. So in this video, I'm gonna create a full stack to-do application from scratch and teach you everything from scratch from starting to end. And here I created a simple backend. In this first video, we have gonna cover all the backend of this to-do app. In the another video, next video, we have covered the front end of this to-do app. So let me just show you what I built today. So here is a simple basically route. Let me show you through the Postman. So I just created simple request HTTP request here. In this request there is a to do request that basically creates a to do for you. Like I just send a simple data, like this is a description, this is title, so I just send. If I send them, so now you can see there is a success, and it show you that what to do and the to id for that to do. If I copy them and go to get all to do, and this is a route to get all to do, there's a get request to get the to do. If I send them, so it show you all the to do's in your backend. Like these are two to do's in your database, so it show you all the to do's. If I update any to do, like if I want to update this to do, I paste the id that I created before, and if I send the request here, so now you can see I update the to do with the title of this and the description with this. And then if I want to get the single to do, so now if I paste this id and send the request, so now you can see this is the show me the updated to do that I have update here. And if I want to delete to do, so now I remove them and paste this id and click on send. So now you can see that to do has been removed. And now if I get on a single to do and paste the same id, if I send them, so now you can see status error and to do not found. So we're gonna build this application end to end from scratch, and in this video we are gonna cover all the backend here, and in the next video we have covered all the front end. So let's start the video. There I created a simple application here, a backend folder. Inside this backend folder there is a config. Inside this config db.js where we set up our database, and there is a controller code. We write a main logic of our application here, and there is a model. Inside this model we write a schema for our application, and there is a route, defining route here, and there is a .env file. Inside this there is a mongo url and port. You can get this mongo url from our compass. If you go on this, and there is a url, if you can clicking on the connect, it will show you page like this, and clicking on three dot and you copy the connection string from here and paste it here. And there is a package.json and the server file, and I install the some dependencies here, and set up a nodebone here, like dev nodebone server.js. So it's install the nodebone, and we not start again and again our project. So let's set up a simple application here. Make a simple const app express, taking an instance of express will be equals to require express, and after express we made a simple app here. Const app will be equals to taking an instance of express, and also we require the .env, because we need to fetch from the process.env, so need to require .env also. .env.config, this is the syntax for this, and app.listen. Let me just add the port here. Const port will be equals to process.env, and getting the port from there, like dot port, or adding a or operator here, or 3005. If our port is inside this, our port is on 3000. If our port is not running on the 3000, it will automatically switch to the 3005 port. So just adding a or operator here, and after this listening our app basically, and adding a port here कि भाई इस port पे चल जाओ, and make this an arrow function. And after this it's syntax error, make it an arrow function, and then we have to console.log कि भाई हमारा सर्वर जो है वो कनेक्ट हो चुका है. ठीक है, console.log backticks का यूज़ करूँगा. Server is running on this, and use a $sign here, and here I write the port. Port, ठीक है, कि हमारा सर्वर जो है इस राउट पे चल रहा है. And if I save them,
and starting a server here, npm run dev, npm run dev, and if I start the server now, okay, of npm node server.js. Now you can see server is running on 3000 port. ठीक है, क्या हमारा सर्वर जो है इस राउंड पे पोर्ट हो रहा है. एंड इफ यू गो टू द 3000 लोकल होस्ट, सो इट विल शो यू दिस एप्लीकेशन. सो नाउ वी सेट अप द डेटाबेस हियर. ठीक है, कॉन्फिग के अंदर db.js की फाइल है, तो डेटाबेस को सेटअप कर लेते हैं. सो फर्स्ट वी नीड टू रिक्वायर .env, क्योंकि यहाँ से भी हम .env से ही हम मोंगो का URL लेंगे, मोंगो डेटाबेस का. ठीक है, तो .env को हम रिक्वायर कर लेते हैं एंड उसके बाद वो मोंगूस को रिक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि मोंगो डेटाबेस बना रहे हैं हम. मोंगूस को रिक्वायर करने के बाद में यहाँ पे इज इक्वल्स टू रिक्वायर मोंगूस मोंगूस. ठीक है, मोंगूस को रिक्वायर कर लिए यहाँ पे एंड एक स्टेट वेरिएबल बना देते हैं कनेक्ट डीबी नाम से. कनेक्ट डीबी नाम से एक स्टेट वेरिएबल बना दिया, इसको एसिंग फंक्शन बना देते हैं. ठीक है, जस्ट क्लीन अप द कोड. ठीक है, एंड उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लेंगे हम. ठीक है, आप चाहो तो डॉट देन मेथड से भी इसको रिजॉल्व करा सकते हो. ठीक है, बट मैं ट्राई कैच ब्लॉक ले रहा हूँ. यहाँ पे कनेक्शन नाम का स्टेट वेरिएबल ले लिया हमने. यहाँ पे इसको अवेट कर देंगे क्योंकि बैकएंड कॉल है. ठीक है, डेटाबेस कॉल है, तो इसको mongoose डॉट कनेक्ट मेथड यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं. ठीक है, mongoose डॉट कनेक्ट मेथड यूज़ करूँगा. एंड जो भी हमारा प्रोसेस में जो भी env में जो भी mongo URL पड़ा होगा ना, यहाँ पे अब आप देखो mongo URL, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है लास्ट वाली वीडियो के अंदर. ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एंड टू एंड लिख रहा हूँ सीधा. इसको मैंने लास्ट वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे इसको क्या क्या नीडेड चाहिए होती है. एंड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती है. यूज़ न्यू URL पार्सर, यूज़ न्यू URL पार्सर को आपको ट्रू सेट करना है. एंड यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी को आपको ट्रू सेट करना है. ठीक है, यूज़ न्यू यूनिफाइड टोपोलॉजीज को भी आपको ट्रू सेट करना होता है इसके अंदर. ठीक है, ये तो आपको करना ही होता है जब भी आप डेटाबेस सेटअप करो. एंड अगर जो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पे मैं console.log दिखाना चाहता हूँ कि भाई मोंगो DB कनेक्टेड ऑन, और इसके बाद में यहाँ पे मैं बैकटिक्स का यूज़ करा तो $साइन यूज़ करूँगा मैं. एंड $साइन करने के बाद में कनेक्शन जो है ना, ये वाला कनेक्शन कनेक्शन डॉट होस्ट बेसिकली ये टाइप बताएगा कि हमारा जो मोंगो डेटाबेस है उसका टाइप क्या है, कौन से लोकल होस्ट पे कनेक्ट है या फिर वो क्लाउड डेटाबेस पे कनेक्ट है. तो ये बेसिकली यहाँ पे लोकल होस्ट बताएगा इसका कि कौन से टाइप का होस्ट पे वो कनेक्ट है. ठीक है, एंड सेम विद एरर, हम यहाँ पे एरर कैच कर लेते हैं. console.log कर देता हूँ मैं एरर को, या फिर console.error भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ मोंगो db एरर. और यहाँ पे आप अगर बैकटिक्स नहीं यूज़ करना चाहते तो आप प्लस का साइन भी यूज़ कर सकते हो. देन यहाँ पे डॉलर ऐड करके जो भी एरर डॉट मैसेज मैं एंटर कराता हूँ, मैसेज, यहाँ पे बैकटिक्स ले लेते हैं. ठीक है, ठीक है, एरर जो भी मैसेज आएगा वो हमने रेंडर करा दिया. एंड इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं. मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट विल बी इज इक्वल्स टू जो भी हमारा कनेक्ट डीबी होगा. इस तरीके से यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इसको. ठीक है, एक्सपोर्ट करके यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट ये बेटर सिंटेक्स है. डेटाबेस लिख लिया, मोंगूस का सर्वर इनिशियलाइज कर लिया. ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे स्कीमा क्रिएट करने, जो कि मॉडल के अंदर मैंने एक to-do.js बना रखा है. स्कीमा बेसिकली क्रिएट करना होता है कि जो नीडेड डिपेंडेंसीज चाहिए होती है अपने प्रोजेक्ट के लिए. ठीक है, लाइक अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, फ़ोन नंबर चाहिए आपको. ठीक है, एंड ईमेल एड्रेस चाहिए, तो वो ईमेल एड्रेस किस टाइप में आना चाहिए, मतलब स्ट्रिंग टाइप में आना चाहिए, बूलियन टाइप में आना चाहिए. तो वो सब ना बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे स्कीमा में बिल्ड करना पड़ता है हमें. ठीक है, तो फटाफट से इसको बिल्ड कर लेते हैं. ये बेसिक सेटअप है. देन वी मूव टू आवर मेन कोड हेयर. ठीक है, इसको रिक्वायर कर लेते हैं यहाँ पे mongoose को. स्पेलिंग मिस्टेक,
क्योंकि मोंगूस को इसलिए रिक्वायर कर लिया क्योंकि मोंगूस का स्कीमा बनाएंगे हम इसके अंदर, ठीक है। मोंगूस को इसलिए रिक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाना है एंड मैं इसको टू डू स्कीमा नाम दे देता हूँ। सपोज दैट टू डू स्कीमा नाम दे दिया मैंने इसको। न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है क्योंकि हम नया एक तरीके का बना रहे हैं स्कीमा। एंड मोंगूस डॉट स्कीमा कीवर्ड का यूज़ करना है यहाँ पे, जिससे आपका स्कीमा रेडी हो जाएगा, ठीक है। स्कीमा बना सकते हो इसके अंदर आप लोग। जैसे मैं सपोज दैट टाइटल लेना चाहता हूँ, पहले टू डू का जो टाइटल होगा, तीन चीज़ें लेना चाहते हैं कि टू डू का टाइटल क्या होगा, टू डू का डिस्क्रिप्शन क्या होगा एंड टू डू कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो टाइप होगा टू डू में, वो टाइप किस टाइप का होगा, मतलब किस टाइप में जो है टाइटल आप सेंड करोगे। मैं स्ट्रिंग में सेंड करूँगा इसको एंड टाइटल में टाइप होगा और रिक्वायर में मैं ट्रू सेट कर देता हूँ। रिक्वायर्ड में मैं ट्रू सेट कर देता हूँ, मतलब कि हमें वो चाहिए ही चाहिए होगा, उसके बिना मतलब कि आगे नहीं बढ़ सकता है। तो रिक्वायर्ड को मैंने ट्रू सेट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। एंड और क्या चाहिए हमें, डिस्क्रिप्शन चाहिए। डिस्क्रिप्शन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे एक यहाँ पे टाइप में ट्रू सेट कर दूंगा, ट्रू सेट कर दूंगा एंड और इसको भी मैं रिक्वायर्ड ट्रू कर दूंगा। रिक्वायर्ड को मैं ट्रू सेट कर दूंगा इसके अंदर भी, ठीक है। इस तरीके से रिक्वायर्ड को ट्रू सेट करने के बाद में एक और लास्ट कंप्लीटेड बना लेते हैं, ठीक है। COMPLETED कंप्लीटेड का बना लेते हैं कि कंप्लीटेड जो है वो है या नहीं है। एंड यहाँ पे कंप्लीटेड का बना लेते हैं, ठीक है। जो भी कंप्लीटेड होगा टाइप में जो है यहाँ पे बूलियन रख देते हैं, ठीक है। टाइप जो होगा उसका वो बूलियन रहेगा। एंड उसके बाद में जो रिक्वायर्ड की फील्ड नहीं है इसके अंदर, रिक्वायर्ड की नीड नहीं है एंड डिफ़ॉल्टली जो है हम इसको यहाँ पे फॉल्स रख देते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्टली जो है यहाँ पे इसको फॉल्स रख देते हैं और उसके बाद में इसको एक्सपोर्ट करते हैं सिंपल कॉन्स्ट टू डू, ये जो स्टेट वेरिएबल है टू डू विल बी इक्वल्स टू वेट, यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। कॉन्स्ट टू डू विल बी इक्वल्स टू जो भी आपका मोंगूज है, मोंगूज का जो भी आपका यहाँ पे मॉडल का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मोंगूज का जो भी मॉडल है एंड यहाँ पे टू डू के नाम से मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब ये टू डू स्कीमा को मैं टू डू के नाम से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी देखो टू डू है, ठीक है। तो इसको किसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो आप टू डू के नाम से, तो वहाँ पे आपको ये टू डू स्कीमा दे देना है कि मैं टू डू स्कीमा को टू डू के नाम से एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरीके से एक्सपोर्ट करने के बाद में जो भी हमारा मॉड्यूल होगा उसको एक्सपोर्ट कर देंगे डिफ़ॉल्टली। जो भी ये टू डू होगा आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से। इसको इस तरीके से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो बट मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट विल बी इक्वल्स टू जो भी टू डू है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट होने के बाद में अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे राउट्स बनाने पड़ेंगे हमें कि इस क्या क्या राउट्स होंगे, मतलब कि टू डू को गेट करने का क्या राउट होगा, डिलीट करने का क्या राउट होगा, तो वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है यहाँ पे। तो उसके लिए जो है जो नीडेड डिपेंडेंसीज है वो हमें चाहिए होंगी। जैसे एक्सप्रेस को हमें बुलाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्रेस की नीड पड़ेगी, यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ मैं एक्सप्रेस को, रिक्वायर कर लेते हैं। एक्सप्रेस को रिक्वायर करने के बाद में यहाँ पे हमें राउटर लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम राउटर का यूज़ करेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें राउट बताने हैं उसके, तो इसलिए जो भी एक्सप्रेस होगा उसका इंस्टेंस दे देंगे हम राउटर में, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद में यहाँ पे आपको जहाँ पे हमें यहाँ पे बेसिकली हमें चार राउट चाहिए होंगे। एक तो यहाँ पे क्रिएट अ टू डू का, ठीक है। और दूसरा राउट चाहिए होगा हमें गेट ऑल टू डू का, ठीक है। एंड तीसरा राउट चाहिए होगा अगर हमें सिंगल टू डू निकालना होगा, गेट सिंगल टू डू। एंड चौथा राउट हमें चाहिए होगा अपडेट अ टू डू का, अपडेट अ टू डू। एंड पांचवा जो राउट चाहिए होगा वो डिलीट अ टू डू, डिलीट अ टू डू। मैं जो यहाँ पे डिलीट अ टू डू का पूरा राउट बना रहा हूँ जो कि पूरा टू डू डिलीट कर दे, जो कि स्पेसिफिक आईडी से डिलीट करेगा। एंड आपका टास्क ये है कि आपको यहाँ पे एक डिलीट अ टू डू करना है जो कि आपको स्पेसिफिक टू डू के आईडी क्या कहते हैं पूरा टू डू डिलीट करना है। आपके लिए टास्क ये है कि आपको पूरा टू डू डिलीट करना है। मैं जो यहाँ पे राउट लिख रहा हूँ वो एक स्पेसिफिक आईडी से डिलीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली राउट्स बना लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारा राउटर होगा इसके लिए जो है यहाँ पे पोस्ट मेथड लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे कुछ सेंड कर रहे हैं। तो कुछ सेंड करने के लिए तो बेसिकली पोस्ट मेथड लगेगा क्योंकि वहाँ से हम रिक्वेस्ट के हेडर के अंदर से बेसिकली टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेंड करेंगे, तो यहाँ पे पोस्ट मेथड लगेगा, ठीक है। एंड इसको जो मैं होम राउट पे बुला लूँगा, मतलब मेन राउट, इसको पाथ दे देते हैं यहाँ पे हम कि भाई ये जो हमारा पाथ है वो होम राउट है, ठीक है। होम राउट देने के बाद में यहाँ पे जो भी आपका टू डू कंट्रोलर दे देते हैं। अभी के लिए हमने बनाया नहीं है राउट, ठीक है। बट एक नाम दे देता हूँ फिर भी मैं यहाँ पे कि मैं जो टू डू कंट्रोलर ही लूँगा,
ठीक है। टू डू कंट्रोलर यानी ये कंट्रोलर के अंदर सिस्टम कोड लिखेंगे ना, वो इसके अंदर हमें मैप करना पड़ेगा। तो इसको मैं बेसिकली इंपोर्ट कर लेता हूँ अभी के लिए कि भाई जो टू डू कंट्रोलर विल बी इक्वल्स टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर करने के बाद में इसको यहाँ से डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश टू डू कंट्रोलर, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लिया। अब ये जो टू डू कंट्रोलर है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, टू डू कंट्रोलर, एंड इसको किस नाम से एक्सपोर्ट करना चाहते हो, किस फंक्शन से एक्सपोर्ट करना चाहते हो। मैंने बोला क्रिएट टू डू, ठीक है। क्रिएट टू डू के नाम से मैं इसको सिंपल राउट देना चाहता हूँ उसको क्रिएट टू डू का, ठीक है। अब गेट ऑल टू डू, सारे टू डू के लिए हमें यहाँ पे राउटर डॉट गेट मेथड लगेगा, क्योंकि हमें गेटिंग करना है, मतलब गेट करने हैं सारे टू डू, मतलब लेने हैं सारे टू डू। तो यहाँ पे भी इसको मैं होम दे दूंगा, होम पाथ। एंड टू डू कंट्रोलर पे क्या फंक्शन रन कराना चाहते हो, उसके साथ में कौन सा फंक्शन रन कराना चाहते हो। तो मैंने बोला गेट ऑल टू डू नाम का मैं फंक्शन बना हुआ कंट्रोलर के अंदर, इसके अंदर, तो वो मैं ले आऊँगा इधर गेट ऑल टू डूज नाम का, ठीक है। तो भी मैंने गेट ऑल टू डूज नाम का फंक्शन बना लिया इसको और इससे मैप कर दिया है, ठीक है। इसके लिए हमने कहा कि ये वाला पाथ होगा। एंड सिंगल टू डू लेने के लिए यहाँ पे अगर हमें सिंगल टू डू चाहिए होगा तो हम स्पेसिफिक आईडी से लेंगे, ठीक है। सिंगल टू डू के लिए भी यहाँ पे गेट मेथड लगेगा, क्योंकि हम ले कुछ रिसीव कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं होम राउट में कॉलन में आईडी दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम स्पेसिफिक आईडी के बेस पे करेंगे। तो ये पाथ पे जो भी आप आईडी डालोगे टू डू की, तो उसी बेस पे ये टू डू को यहाँ से उस टू डू को फैच करके दे देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे गेट ऑल टू डू के लिए भी सिंपल टू डू कंट्रोलर में जो भी हम वो बनाएंगे गेट ऑल टू डू, गेट टू डू बाई आईडी नाम दे देते हैं, सपोज दैट इसको गेट टू डू बाई आईडी, ठीक है। गेट टू डू बाई आईडी नाम दे दिया मैंने इसको, कि हम कंट्रोलर के अंदर क्रिएट टू डू के लिए ये वाला फंक्शन लिखेंगे। ये नाम जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए कंट्रोलर के अंदर। अगर आप फंक्शन लिखोगे क्रिएट टू डू का या गेट टू डू का, ठीक है, तो वो जो नाम होना चाहिए ना और ये जो नाम होना चाहिए, ये दोनों ना सेम होने चाहिए। जो क्रिएट टू डू वहाँ पे भी सेम होना चाहिए, एंड गेट ऑल टू डू भी सेम होना चाहिए, एंड गेट टू डू बाई आईडी भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अपडेट टू डू के लिए भी सेम यही बनेगा। यहाँ पे इधर भी मैं राउटर का यूज़ करूँगा। राउटर पे इस अपडेट करना है तो अपडेट ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ डेटा सेंड करेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट चलेगी। इधर स्लैश यहाँ पे एंड पॉइंट रहेगा, एंड कॉलर में आईडी दे देंगे कि आईडी के बेस पे हम डिलीट करेंगे। और टू डू कंट्रोलर में जो भी हमारा इसको फंक्शन को नाम दे देंगे। यहाँ पे मैं अपडेट टू डू दे देता हूँ, सपोज दैट अपडेट टू डू नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। ये अपडेट टू डू का राउट हो गया। अगर हमें डिलीट करना हो किसी टू डू को फिर, तो डिलीट टू डू के लिए राउटर डॉट यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट चलेगी, यहाँ पे पोस्ट ना डिलीट रिक्वेस्ट चलेगी बेसिकली, क्योंकि हम डिलीट कर रहे हैं राउट को, ठीक है। तो बेसिक बात है डिलीट रिक्वेस्ट चलेगी, एंड आईडी सेंड कर देंगे इसके साथ में, ठीक है। जो भी हमारा टू डू होगा उसके साथ में आईडी स्पेसिफिक आईडी पे हम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो आपका टास्क ये है कि आपको ऑल टू डू डिलीट करने हैं, जितने भी हमारे बैक एंड या डेटाबेस में टू डू है वो सारे टू डू डिलीट करने हैं आपको, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कोमा देने के बाद में यहाँ पे टू डू कंट्रोलर आपको सर्च करना है, टू डू कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे इसको राउट दे देना है कि मतलब फंक्शन का क्या नाम देना चाहते हो। तो मैंने बोला डिलीट टू डू दे देते हैं, डिलीट टू डू, ठीक है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे ब्रैकेट ज़्यादा है, राउटर डॉट पोस्ट टू डू कंट्रोलर, ठीक है। तो ये सारे राउट तैयार हैं हमारे, एंड ऑलमोस्ट डेटाबेस का सेटअप कर लिया हमने। टू डू कंट्रोलर का मेन लॉजिक लिखना रह गया, ठीक है। इधर ये जो हमारा मेन फंक्शन चालू होता है यहाँ से, ये बेसिकली स्कीमा रेडी कर लिया हमने। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। स्कीमा रेडी कर लिया इसके लिए, एंड राउट सेटअप कर लिए हमने सारे, एंड यहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब जो फाइनल लॉजिक रहता है वो हमारा इधर रहता है, ठीक है। तो चलो इसको बिल्ड करते हैं फटाफट से। एक बार ना कंट्रोलर का कोड लिखने से पहले ना हम फटाफट से डेटाबेस को सेटअप कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस जो है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हमें रिक्वायर करना पड़ेगा, उधर हमने कनेक्ट डीबी नाम से बनाया था फंक्शन। कनेक्ट डीबी विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे उसको रिक्वायर कर लेंगे, मतलब कि इधर इंपोर्ट कर लेंगे, एंड रिक्वायर कर लेते हैं फटाफट से डॉट स्लैश, और कॉन्फिग के अंदर सारा कॉन्फिग के अंदर हमारा db.js, ठीक है। एंड बुलाने के बाद में इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है, जिससे जो है ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और डेटाबेस सेटअप हो जाना चाहिए। एंड अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे आप देखो सर्वर इज़ रनिंग ऑन 3000 पोर्ट एंड MongoDB कनेक्टेड ऑन द लोकल होस्ट, ठीक है। ये लोकल होस्ट पे कनेक्ट हो चुका है। तो फटाफट से लिखते हैं टू डू कंट्रोलर का कोड। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 5 राउट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो नाम है, एंड जो हमारे इसके अंदर जो नाम है, राउट्स के अंदर जो नाम है दिखाया था आपको, ये राउट्स के अंदर जो ये मैंने फंक्शन के नाम लिखे हैं, ये नाम और ये जहाँ पे फंक्शन का नाम होगा वो सेम होगा, क्योंकि हम यही फंक्शन को यहाँ पे बुला रहे हैं टू डू कंट्रोलर के अंदर से क्रिएट राउट में।
इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे, ऐसे इस तरीके से हम फंक्शनों को यहाँ पे बुला रहे हैं। तो ये मेक श्योर करना आपको नाम सेम होने चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम सेम लिखे हैं इस तरीके से, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो नाम होने चाहिए ये सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे अपडेट टू डू का नाम सेम है, एंड डिलीट टू डू का नाम सेम है, एंड क्रिएट टू डू का नाम सेम है, एंड गेट ऑल टू डूज का नाम सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये नाम सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका नाम गलत होगा और आउट्स में नाम चेंज डिफरेंट होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन का नाम ही आप डिफरेंट चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम टू डू को बुला लेते हैं, क्योंकि हमारे को स्कीमा चाहिए होगा ना, क्योंकि हम स्कीमा के बेस पे यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है। स्कीमा के बेस पे फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है डॉट डॉट स्लैश मॉडल के अंदर जो हमारा टू डू है इसको ले आएंगे। तो फटाफट से लिखते हैं क्रिएट टू डू का फंक्शन, ठीक है। तो इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करूँगा मैं यहाँ से, यहीं से एक्सपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। एक्सपोर्ट्स डॉट यहाँ पे क्रिएट, ये जो फंक्शन है इसी को कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मैंने यही नाम लिख रखा है, पेस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट टू डू, इसको मैं एक एसिंग फंक्शन बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डीबी कॉल कर रहे हैं हम। 2 पैरामीटर लेता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एरो फंक्शन बना देंगे, ठीक है। ये अभी तक सेम है, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे एक नया टू डू बनाना है, तो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लूँगा मैं इसको, कैच में एरर, क्योंकि एक बेटर एरर हैंडलिंग भी हो जाएगी इसी वाले, ठीक है। तो ट्राई कैच ब्लॉक में लेंगे, इसलिए हमने एसिंग फंक्शन का यूज़ करा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट टू डू नाम का एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। ये जो होगा टू डू ने एक नया टू डू क्रिएट करेगा, इसको अवेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एसिंग फंक्शन का यूज़ करा है। एंड जो भी हमारा ये टू डू है ना, इसी के बेस पे हम ये करेंगे, क्योंकि ये डेटाबेस से कनेक्ट है, ठीक है। तो डेटाबेस में यानी टू डू पे क्रिएट करेंगे, टू डू डॉट क्रिएट मेथड आता है एक, ठीक है। ये देखो क्रिएट मेथड आता है, ये क्या करेगा, बेसिकली क्रिएट कर देगा टू डू आपके डेटाबेस के अंदर, ठीक है। जैसे मैं क्रिएट करूँगा, जो भी आपके रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर जो भी आए, ठीक है। रिक्वेस्ट की बॉडी मीन्स अगर आप पोस्टमैन पे जाओ यहाँ पे, ठीक है, पोस्टमैन में अगर क्रिएट टू डू करो, यानी रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट है इसकी बॉडी के अंदर जो भी डालो आप, तो ये सारा कुछ यहाँ से उठा लेगा एंड उसको लेके इन्फॉर्मेशन को लेके एक टू डू क्रिएट कर देगा उसके लिए नया, ठीक है। एंड इसको करने के बाद में यहाँ पे जैसे ही हमारा टू डू क्रिएट हो जाए यहाँ पे, एंड तो हमें रिस्पॉन्स में यहाँ पे स्टेटस कोड दिखाता हूँ मैं। रिस्पॉन्स के स्टेटस में आपको 200 दिखा देना है, 200 मीन सक्सेस हो चुका है, मतलब टू डू क्रिएट हो चुका है। एंड जेसोन में मैं सारा डेटा सेंड कर दूंगा, ठीक है। डॉट जेसोन करके यहाँ पे स्टेटस पे मैं यहाँ पे सक्सेस दिखाता हूँ। एंड इसको कर एक सिंगल कोटेड स्ट्रिंग में ले लेते हैं, स्टेटस में यहाँ पे सक्सेस दिखा दिया मैंने, ठीक है। एंड जो डेटा रहेगा, डेटा में यहाँ पे पूरा का पूरा टू डू ही दिखा देते हैं, ठीक है। मतलब कि डेटा में टू डू इसलिए दिखाया मैंने क्योंकि ये पूरा का पूरा टू डू शो कर देगा हमें। अगर मैं आप यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे पोस्टमैन से हिट मारा था, ठीक है, तो ये हमें रिटर्न रिस्पॉन्स में क्या दे रहा था, ये रिस्पॉन्स में मैं पूरा का पूरा टू डू दे रहा था, यानी सक्सेस, ये स्टेटस सक्सेस, और डेटा, ये जो हमने डेटा बनाया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे डेटा में पूरा का पूरा टू डू रिटर्न कर दे, ठीक है। इस तरीके से ये बनाया हमने, और इसका सिंपल है, ये तो सिंपल राउट है। यहाँ पे एरर कर लेते हैं एक बारी, यहाँ पे अगर कुछ एरर आ जाए तो स्टेटस में तुम क्या करना, 400 वो दिखा देना, स्टेटस कोड 400। एंड जेसोन में क्या सेंड करेंगे हम, जेसोन में हम सेंड कर देंगे भाई स्टेटस में फॉल्स सेट कर देंगे, या फिर एरर भी सेट कर सकते हो। अभी के लिए एरर लेते हैं, ठीक है, एरर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। और स्टेटस में एरर, सक्सेस में फॉल्स भी दिखा सकते हो आप, एरर भी दिखा सकते हो, बट मैं एरर दिखा रहा हूँ अभी के लिए। एंड यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि भाई मैसेज क्या देना चाहते हो, अगर कुछ नहीं हो तो, कि भाई एरर डॉट मैसेज दिखा देता हूँ, सपोज दैट एरर डॉट मैसेज, ठीक है। अगर कुछ एरर आता है तो इसके अंदर ये एरर डॉट मैसेज दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ भी एरर आता है टू डू क्रिएशन में, तो ये तो सिंपल सा राउट था इसके लिए, यहाँ से ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं थी इसमें, तो सिंपल सा राउट था ये तो। अब देखते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स राउट है ये, गेट ऑल टू डूज, ठीक है। ये भी सिंपल ही राउट होगा, ठीक है, एकदम इजी, सेम फंक्शन जैसे ऊपर लिखा है वही सिंटेक्स रहेगा, बस यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, एक्सपोर्ट डॉट गेट ऑल टू डूज हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको भी एसिंग फंक्शन बना देते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लेंगे फ्रॉम द रिक्वेस्ट बॉडी। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं ट्राई कैच ब्लॉक में लूँगा इसको बेटर एरर हैंडलिंग के लिए, ठीक है। ओ यहाँ पे करली ब्रेसेस आने चाहिए, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लिए, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक ले लेते हैं यहाँ पे, ट्राई एंड कैच ब्लॉक, एरर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस ट्राई कैच ब्लॉक में हम कोड लिख लेते हैं इसके लिए,
कौन सा टू डू बनाएंगे, इधर मैं टू डूज बना लेता हूँ, जैसे सेम ऊपर टू डू बनाया इधर टू डू बना लेता हूँ, उसको भी अवेट करना पड़ेगा। एंड जो भी हमारा टू डू है, यानी जो भी हमारा डेटाबेस है, कि टू डू मतलब कि डेटाबेस के अंदर फाइंड मेथड लगा दूंगा, ठीक है। और जितने भी टू डू है वो सारे ले आऊँगा, मतलब टू डू जितने भी हैं डेटाबेस के अंदर फाइंड करो और वो सारे टू डू दे दो, ठीक है। तो टू डू डॉट फाइंड मेथड लगाऊंगा यहाँ पे। एंड अगर टू डू मिल जाए, यहाँ पे रिस्पॉन्स के स्टेटस में मैं 200 कोड दिखा दूंगा। .json में जितने भी टू डू होंगे वो सारे शो कराने हैं हमें, ठीक है। जितने भी टू डू होंगे ना, पहले तो स्टेटस में यहाँ पे सक्सेस दिखा देता हूँ मैं, एंड स्टेटस पे सक्सेस दिखा देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे डेटा में अभी हमारा डेटा रहेगा, एंड उसमें यहाँ पे मैं जो भी टू डूज बनाए हैं हमने, ये टू डूज जो भी आया है यहाँ से, ये टू डू शो करा दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे को सारे के सारे वो मिल जाते हैं, तो सारे के सारे टू डूज मिलने के बाद में ये आ जाएगा यहाँ पे स्टेटस में सक्सेस, डेटा में टू डूज। कैच में एरर कैच करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस यहाँ पे वही रहेगा, 400 कर देते हैं। सपोज दैट आप 401 भी कर सकते हो, 402 भी कर सकते हो। स्टेटस कोड अगर आप सर्च करो तो आपको गूगल पे ही मिल जाएंगे, HTTP स्टेटस कोड अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस में मैं एरर शो कराता हूँ, ये सेम जैसे ऊपर कराया है। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैसेज शो कराते हैं। मैसेज जो रहेगा वो रहेगा एरर डॉट मैसेज, कि जो भी एरर आएगा वही मैसेज प्रिंट करके दे देगा ये, ठीक है। एरर डॉट मैसेज, ठीक है। तो ये भी इजी था एक तरीके से। एंड तीसरा राउट लिखते हैं गेट टू डू बाय ID का, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डॉट जो भी गेट टू डू बाय ID, या फंक्शन का नाम यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं, इसी फंक्शन को लिखना है आपको यहाँ पे, गेट टू डू बाय ID, ठीक है। इस फंक्शन को लिखना है, इसको एसिंग फंक्शन बनाते हैं। एसिंग फंक्शन बनाने के बाद में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेगा, सेम एरो फंक्शन बना देंगे इसको। एरो फंक्शन बनाने के बाद में यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक भी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टू डू ID पे हम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे टू डू नाम का ही, सपोज मैंने टू डू नाम का एक स्टेट वेरिएबल ले लिया, ठीक है। एंड उसको बाद में यहाँ पे अवेट कर देंगे इसको भी, क्योंकि बैकएंड कॉल है। एंड जो भी हमारा टू डू होगा ना, उस पर फाइंड वन मेथड लगाएंगे। फाइंड वन मतलब कि हमें कोई सिंगल आइटम अगर फाइंड करना हो तो फाइंड वन मेथड आता है, यानी बैकएंड के अंदर, यानी डेटाबेस के अंदर हम फाइंड वन मेथड लगाएंगे। और फाइंड वन मेथड से वो स्पेसिफिक ID के बेस पे हम ढूंढ के लाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक ID के बेस पे ढूंढ के लाएंगे, तो फाइंड वन ID करके मेथड आता है इस पर, फाइंड बाय ID मेथड आता है, ठीक है। तो फाइंड बाय ID के बेस पे हम यहाँ पे करेंगे। एंड इसको कुछ देना भी पड़ेगा रिक्वेस्ट के हेडर पे, किस बेस पे करेगा, तो यानी रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर, यानी रिक्वेस्ट के अंदर जो भी पैराम्स के अंदर, यानी पैरामीटर्स के अंदर जो भी हम ID देंगे उसको, ये उसी बेस पे डिलीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं .id लिख देता हूँ, यानी रिक्वेस्ट के अंदर जो भी, अगर आप देखो पोस्टमैन में, तो यहाँ पे हमने अपडेट टू डू का जो राउट बनाया था, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये राउट दिया था, एंड उसके बाद में ये ID दी थी, ठीक है। इसी स्पेसिफिक ID के बेस पर वो डिलीट करेगा, तो ये ID लेगा एज एन इनपुट पैरामीटर। तो हमने रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर ID भेज दी, ठीक है, क्योंकि इसी ID के बेस पे ये जो है डिलीट करेगा। एंड अगर एक केस हो सकता है, अगर इसको टू डू मिला ही ना हो, ठीक है, इस ID से रिलेटेड कुछ टू डू ना ही हो उसके पास, तो अगर टू डू ना हो इसके पास, तो ये नोट इक्वल का साइन लगाता हूँ कि अगर टू डू नहीं हो, तो इस केस में हम सिंपल रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा रिस्पॉन्स है। एंड रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे स्टेटस में 500 दिखा देते हैं, ठीक है, 500 दिखा देते हैं। इंटरनल सर्वर एरर होता है 500 स्टेटस कोड बेसिकली, एंड JSON के अंदर डेटा दिखा देते हैं कि भाई अगर कुछ एरर आ जाता है, ठीक है, तो एरर दिखा देते हैं। या 500 कोड सही नहीं रहेगा इसके लिए, 404 दिखा देते हैं, ठीक है, नॉट अवेलेबल करके। तो रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे स्टेटस में यहाँ पे फॉल्स दिखा दूंगा मैं। स्टेटस में यहाँ पे आप जो भी आप दिखाना चाहो एरर दिखा सकते हो, मैं अभी के लिए एरर ही दिखा रहा हूँ, आप फॉल्स भी दिखा सकते हो। मैसेज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट एरर हैंडलिंग है। मैसेज दिखा दूंगा टू डू नॉट फाउंड करके, फाउंड, ठीक है। तो अगर ये नहीं मिला इस ID से रिलेटेड, तो टू डू नॉट फाउंड आ गया। एंड अगर मिल गया, सपोज दैट अगर इस ID से रिलेटेड मिल गया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम रिस्पॉन्स के स्टेटस में तो 200 दिखा देंगे पहली बात तो, क्योंकि सक्सेस हो चुका है, टू डू मिल चुका है। .json, ठीक है, .json में यहाँ पे स्टेटस में यहाँ पे सक्सेस दिखा देते हैं, स्टेटस में, क्योंकि टू डू मिल चुका है स्पेसिफिक ID से। एंड उसके बाद में डाटा में जो भी हमारा टू डू है, ये जो बनाया हमने टू डू, ये रिटर्न करा देंगे यहाँ पे, ठीक है।
टू डू रिटर्न करा दिया, मतलब कि पूरा का पूरा टू डू ही सेंड कर देगा। अगर आप देखो यहाँ पे गेट टू डू बाय आईडी में, यहाँ पे अपडेट टू डू में, तो यहाँ पे अब जैसे ही मैं अपडेट करता था तो जो भी हमारा अपडेटेड टू डू है ना, ठीक है, जो सॉरी गेट टू डू बाय आईडी है ना, गेट सिंगल टू डू ये रहा, तो जो भी हमारा वो था ना टू डू, तो ये वो पूरा का पूरा शो करता था। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लो, इस तरीके से अगर टू डू हम सिंगल आईडी से ढूंढे तो ये टू डू इस तरीके से शो करता था। तो इसलिए हमने डेटा के अंदर टू डू सेंड कर दिया। एरर केस हैंडलिंग कर लेते हैं इधर, ठीक है। एरर केस में वही रहेगा जो ऊपर रहेगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। यहाँ पे जो भी आप 500 दिखाओ 400 दिखाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज दैट 500 दिखा देते हैं, इसके अंदर 500 इंटरनल सर्वर एरर होता है जेसॉन में, ठीक है। एंड जेसॉन में यहाँ पे स्टेटस में यहाँ पे एरर फॉल्स दिखा देते हैं, फॉल्स दिखा देना है, ठीक है। या फिर एरर भी दिखा सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, कुछ भी एरर हैंडलिंग कर सकते हो। सपोज दैट मेन लॉजिक के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कि मेन लॉजिक कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद में मैसेज दिखा देते हैं, एक मैसेज में दिखा देते हैं सपोज दैट एरर डॉट मैसेज ही दिखा देते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मैसेज लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। सेकेंड एरर डॉट मैसेज, हाँ ठीक है। तो ये राउट था अगर हमें किसी आईडी से रिलेटेड ढूंढना है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट राउट के ऊपर, जो कि होगा हमारा अपडेट टू डू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राउट है, ठीक है। अगर हमें कोई किसी आईडी किसी टू डू को अपडेट करना हो, ठीक है, तो उसको कैसे अपडेट करें। यहाँ पे एक्सपोर्ट्स डॉट यही अपडेट टू डू आएगा, यही अपडेट टू डू। फंक्शन का नाम आपको सेम रखना है, याद रखना, ठीक है। फंक्शन का नाम सेम रखने के बाद में इज इक्वल्स टू, इसको भी एसिंग फंक्शन बना देंगे जैसे ऊपर सेम करा है, बस वही होगा। बस ये जो मेन होगा ये फंक्शन होगा, जो भी डेटाबेस के फंक्शन आते हैं ना, मोंगूस के फंक्शन, बस इसी में ही चेंज होगा, बाकी सब तो सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट डॉट अपडेट टू डू विल बी इज इक्वल्स टू, इसको एसिंग फंक्शन बना देते हैं, एसिंग फंक्शन बना देते हैं। रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स लेगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लेगा, ठीक है। कुछ दिक्कत है यहाँ पे, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स लेगा, इसको भी ट्राई कैच ब्लॉक पे लेते हैं बेटर एरर हैंडलिंग के लिए। कैच, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक में यहाँ पे इसको ले लेते हैं। एंड उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक में लेने के बाद में यहाँ पे एक टू डू बना लेते हैं फटाफट से, जो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम आप सेम भी रखो। इसको भी अवेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे एसिंग का यूज़ करा है। तो यहाँ पे इसके लिए एक सिंटेक्स आता है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। हमें आईडी पे अपडेट करना है ना, तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड रिक्वेस्ट के जो भी पैराम्स के अंदर, यानी पैराम्स के अंदर, पैरामीटर्स के अंदर जो भी हम आईडी देंगे उसी बेस पे ही अपडेट करेगा, ठीक है। और रिक्वेस्ट, और एक और चीज़ यहाँ पे आएगी रिक्वेस्ट की बॉडी में से, रिक्वेस्ट की बॉडी में से यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों करा अपडेट टू डू में। अगर आपको मैं यहाँ पे पोस्टमैन में दिखाऊं, तो पोस्टमैन में यहाँ पे अगर आप जाओ अपडेट टू डू में, अपडेट टू डू में एक तो आप आईडी दे रहे हो, और दूसरी चीज़ आप रिक्वेस्ट की बॉडी में अपडेटेड टू डू भेज रहे हो कि भाई अपडेट कर देना टाइटल को, इस टाइटल को इससे, इस टाइटल को इससे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट की बॉडी में आप ये भी भेज रहे हो एंड टाइटल भी भेज रहे हो, तो दो चीज़ें भेज रहे हो आप बेसिकली यहाँ पे। तो इसलिए ये आईडी ले ली इसने, एंड यहाँ से रिक्वेस्ट की बॉडी में से आपका अपडेटेड टू डू ले लिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने करा है। एंड इसके लिए आपको न्यू को ट्रू सेट कर देना पड़ेगा, न्यू को ट्रू सेट करना पड़ेगा कि जो भी आपका नया टू डू आया है ना उसको ट्रू सेट कर देना है, ठीक है। एंड एक और चीज़ आपको यहाँ पे न्यू को ट्रू सेट कर देना है, एक और चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। वो जो रहेगी आपकी वो रन वैलिडेटर्स रहेगी, है ना, रन वैलिडेटर रहेगी, उसको भी ट्रू करना है। वो क्यों ट्रू करना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए इसको यहाँ पे ट्रू सेट कर देते हैं। एरर आ रहा है, ट्रू एनी सिंग, ओके। तो न्यू को आप टू सेट कर देते हैं। एंड जो रन वैलिडेटर होगा, यार रन वैलिडेटर का यूज़ क्या होता है मैं बताता हूँ। वैलिडेटर का यूज़ क्या होता है, इसको भी मैं ट्रू सेट कर देता हूँ पहले। एरर आ रहा है, एक सेकंड चेक करते हैं कि क्या एरर आ रहा है। ये तो ओके, तो यहाँ पे आई थिंक दैट आई गेस ये नहीं आना चाहिए इधर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कोमा आना चाहिए था एंड ये नहीं आना चाहिए था, एंड इसके बाद में ये आना चाहिए था, ठीक है। तो ये सिंटेक्स एरर था ज़रा सा, कुछ प्रॉब्लम है अभी भी, चेक, ओके सो ठीक है, अब ठीक है।
तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट की बॉडी में से ले लिया और ये न्यू को ट्रू सेट कर दिया। मतलब कि रन वैलिडेटर क्या होता है? रन वैलिडेटर मीन्स अगर आप जो डेटाबेस में देखो, जो भी आपने स्कीमा बनाया है यहाँ पे, अगर आप स्कीमा में जाओ तो ये स्कीमा चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी आपका अपडेटेड टू डू होना चाहिए ना, वो ये स्कीमा को यूज़ करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये रन वैलिडेटर को ट्रू सेट करना पड़ता है, क्योंकि जो भी आपका अपडेटेड स्कीमा आएगा ना, वो इन चीज़ों को फॉलो करे, ठीक है, इनको चेंज ना करे। तो इसलिए रन वैलिडेटर को ट्रू सेट कर दिया मैंने अभी के लिए, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा वो करने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप ना भी करो तो भी चलेगा, बट एक एक्सपेक्टेशन एरर केस हैंडल कर दिया एक तरीके से हमने, कि भाई अगर ऐसा हो, चेंज हो टू डू, तो एक केस ना बने ऐसा, ठीक है। तो इसको करने के बाद में अगर टू डू हो ही ना हो, अगर आप एक केस ये भी हैंडल करना पड़ेगा कि अगर आपने जो भी अपडेट टू डू करने को कहा है, कि वो अगर टू डू हो ही ना, उस आईडी से टू डू ही ना बनाओ, तो उसके लिए हम सिंपल रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में यहाँ पे मैं 404 सपोज दैट 404 एरर वेस्टेस के लिए, ठीक है। जेसन में जाऊँगा एंड जेसन में जाने के बाद में यहाँ पे मैं वही स्टेटस में, जो कि पर पूरा सेम कोड करा वही आ जाएगा इधर स्टेटस में। यहाँ पे एरर आ जाएगा कि भाई अगर दिस इज एरर, एंड मैसेज में अगर आप कुछ भी टू डू नॉट फाउंड दे देते हैं, टू डू नॉट, ओके, ठीक है। टू डू नॉट फाउंड, अगर टू डू फाउंड हो गया तो फिर एक केस हैंडल करना पड़ेगा। अगर टू डू फाउंड हो गया फिर तो भाई तुम रिटर्न के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर 200 कोड सेंड कर दो डॉट जेसन, एंड जो भी डाटा में सक्सेस में ट्रू सेट कर दो, एंड डाटा में तुम वो सेंड कर दो जो भी तुम्हारा टू डू है, ठीक है। डाटा में टू डू सेंड कर दो, मैं सेव कर देता हूँ। एंड एरर केस हैंडल करते हैं ऐसी कई, ठीक है। एरर केस हैंडल करते हैं। अब जो भी हमारा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस होगा, इसमें 500 दिखा देता हूँ मैं, सपोज दैट कुछ इंटरनल सर्वर आ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे जेसन में डेटा सेंड कर देते हैं कि भाई स्टेटस में फॉल्स, एंड मैसेज में दिखाते हैं एरर डॉट मैसेज, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हैंडल कर लिया मैंने। एंड अभी रह रहा है लास्ट टू डू, डिलीट टू डू बाय आईडी, ठीक है। स्पेसिफिक आईडी के बेस पे हम डिलीट करेंगे इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डॉट डिलीट, इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट डिलीट, ये नाम का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, इसको भी एसिंग फंक्शन बना देते हैं, एसिंग फंक्शन बनाते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेगा ये, एंड ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लेंगे इसको, कैच के अंदर, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ले लेंगे इसको, एंड सेम यहाँ पे भी टू डू लेंगे, बट यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसको भी अवेट कर देंगे। जो भी हमारा टू डू है, टू डू डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का एक आता है, आई थिंक दैट, हाँ ये रहा, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। हर एक का स्पेसिफिक काम होता है। एंड इसमें भी हम सिंपल रिक्वेस्ट की पैरामीटर्स के अंदर जो भी आईडी देंगे उस पेज पे डिलीट करेगा ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर जो भी आईडी देंगे हम उस पेज पे डिलीट कर देगा। सेम एक एरर कैसे हैंडल करते हैं, अगर इसको टू डू नहीं मिला उस आईडी से, ठीक है, अगर टू डू ही नहीं मिला तो रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे मैं सपोज 404 कर देता हूँ, ठीक है, डॉट जेसन, एंड यहाँ पे स्टेटस में स्टेटस में फॉल्स, स्टेटस में एरर, एंड मैसेज में एरर डॉट मैसेज, ठीक है। स्टेटस में एरर एंड एरर में मैसेज, एरर डॉट मैसेज, एरर के हैंडल करते हैं इसका, रेस्ट डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, एंड 500 एरर, एंड जेसन में सेंड कर देंगे इधर स्टेटस में, यहाँ पे सपोज दैट एरर, एंड मैसेज में या मैसेज में ना ये वाला आना चाहिए था, इसको मैसेज में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं मैसेज में चेंज कर देता हूँ। मैसेज में आना चाहिए यहाँ पे जो भी कि भाई टू डू डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है, टू डू डिलीट सक्सेसफुली। तो ऑलमोस्ट ये फंक्शन लिख दिया हमने, ठीक है, ये सारा फंक्शन लिख दिया। एंड डेटाबेस कनेक्ट है,
टू डू कंट्रोलर हो गया एंड मॉडल्स आ गए, ठीक है, और राउट सेटअप कर लिए हमने सारे, एकदम बढ़िया। इसको एक बारी इंपोर्ट दोबारा, चलो ठीक है, इंपोर्ट सही है, एंड सर्वर डॉट जी एस रेडी कर लिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, अभी कुछ करने की नीड नहीं है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे मिडल वेयर को आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। पे ऐप सर्वर डॉट जी एस में ऐप डॉट यूज़ करके आता है मिडल वेयर। बॉडी पार्सर भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, बॉडी पार्सर भी सेम करता है, बट एक्सप्रेस जो है ये खुद का ही एक मिडल वेयर देता है, ठीक है। तो वही एक्सप्रेस डॉट जेसन करके यहाँ पे। एंड एक और चीज़, हमें राउट सेटअप करना पड़ेगा इसके लिए ना, ऐप डॉट यूज़ की ऐप यूज़ कर ले। अगर इसके आने से पहले, मैंने इसका एग्जांपल दिया था, टू डू स्लैश टू डूज आ जाए, मतलब कि स्लैश टू डूज आ जाए सब कुछ करने से पहले, एंड टू डू राउट्स को हम सेटअप कर लेते हैं। टू डू राउट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं राउट्स, टू डू राउट्स जो है वो ये है, ये टू डू राउट्स विल बी इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट स्लैश राउट्स के अंदर जो भी टू डू राउट्स है, ठीक है। एंड इधर मैं टू डू राउट्स शो करा दूँगा, टू डू राउट्स, ठीक है, ये हो चुका है। एंड पोर्ट रनिंग हो चुका है, टू डू राउट हो चुका है। यहाँ पे एरर आ रहा है, इनवैलिड स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ट्रू इज़ नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ पाथ डिस्क्रिप्शन, ओके। मॉडल स्कीमा में प्रॉब्लम है, मॉडल ट्रू, बूलियन ट्रू, ट्रू, ओके। रिक्वायर्ड, इसको टाइप को स्ट्रिंग ही रहने देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि डिस्क्रिप्शन में नीड नहीं है वैसे भी। एंड तो ये एरर फिक्स करते हैं, ट्रू इज़ नॉट अ वैलिड टाइप डिस्क्रिप्शन, सी अ लिस्ट ऑफ टू डू स्कीमा, टाइप हुआ एरर, वैलिड टाइप पाथ डिस्क्रिप्शन ट्रू, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आना था, मैंने ट्रू सेट कर दिया गलती से, सेव करते हैं। ओके, अनदर एरर, रेफरेंस गो टू डू आई डी इज़ नॉट डिफाइंड कंट्रोलर डॉट, ओके। सो यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग करना है हमें, ठीक है, तो डॉट का यूज़ करेंगे, डॉट से डी स्ट्रक्चरिंग होती है। सेव करते हैं अभी के लिए। ओके, तो सर्वर इज़ रनिंग ऑन 3009 पोर्ट एंड मोंगो डी बी कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। मैं सेव करूँ, अब मैं एक हिट मार के दिखा देता हूँ पोस्टमैन से, एक टू डू क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि चल रहा है नहीं चल रहा। तो अभी जो है 3009 पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है HTTP रिक्वेस्ट कोलन 3009 स्लैश टू डूज मतलब कि एंड पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे जाओ और सर्वर डॉट जी एस में जाओ तो ये देखो स्लैश टू डूज जो है स्टार्टिंग एंड पॉइंट है, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे पोस्टमैन में चलते हैं एंड यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल टू डू एक क्रिएट कर दिया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन करके, एंड बस सेंड करता हूँ। ओके, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस में ट्रू आ गया, ठीक है। सैम्पल टू डू, दिस इज़ अ सैम्पल टू डू एंड आईडी भी आ गई, ठीक है। अब इसको ना एक बार ये कोड डिलीट करके देख लेते हैं, ऐसी टू डू अपडेट करके देख लेते हैं ऐसी टू डू को, ठीक है। इस आईडी पे अपडेट करके देख लेते हैं कि डेटाबेस में अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा। पहले डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि जो है ये टू डू आया है नहीं आया। मैं रिफ़्रेश करूँगा, टू डूज़ यही है, हाँ यही है शायद, हाँ यही है, ठीक है। तो ये देख सकते हो सैम्पल टू डू, दिस इज़ अ सैम्पल टू डू एंड कंप्लीटेड बाय फॉल्स, ठीक है। तो अभी इसको बैक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि यही टू डू है, ENV में टू डूज़, हाँ ठीक है, टू डूज़ ही है। एंड तो अभी चेक करते हैं फटाफट से, एंड अभी पोस्टमैन में चलते हैं, इसको अपडेट करते हैं टू डू को, ठीक है। दिस इज़ अ सैम्पल टू डू था एंड डिस्क्रिप्शन बदल के अपडेटेड डिस्क्रिप्शन रख दिया, आईडी पेस्ट कर दी, सेंड, ओके। पुट रिक्वेस्ट इज स्टार्टेड नहीं है क्या, सर्वर स्टार्ट है, ओके। 3009 पे चल रहा है ना अभी, सेंड करते हैं, ठीक है। अपडेट में यहाँ पे सक्सेस दिखा दिया इसने, अपडेटेड टू डू। एक बार ये डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि अपडेट हुआ नहीं हुआ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखो आपके सामने बदल के अपडेट हो चुका है टू डू, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड अ सिंपल टू डू एप्लीकेशन बैक एंड टू एंड, ठीक है। इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सब कुछ देखने को मिल गया कि जो कि एक टू डू ऐप में होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका फ्रंट एंड देखेंगे, ठीक है, एंड देखेंगे कि इसको फ्रंट एंड कैसे कनेक्ट होता है बैक एंड के साथ में, डेटाबेस के साथ में, एंड फुल स्टैक एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करी जाती है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।